آداب، یہ اعتماد کی خبریں، سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ نیٹ کاؤنسلنگ پر امتناع عائد کرنے سے سپریم کورٹ کا انکار، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو نوٹس۔ امراوتی آندھرا پردیش کا دارالحکومت، چندرا بابو نائیڈو کا اعلان۔ ایٹ سیٹ کے نتائج جاری، ضائع 96% امیدوار کامیاب۔ تلنگانہ میں مانسون کی پیش رفت، کئی مقامات پر بارش کا امکان۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے کہا کہ اس سال حج سیزن کو ایک بڑے چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ حجاج کرام کو شدید گرمی کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان محمد عبدالعلا نے حجاج کو صحت کے رہنما اصول پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حجاج سے خواہش کی کہ وہ حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے چھتریوں کا استعمال کریں، کثرت سے پانی پئیں اور وقوف کے دوران آرام بھی کریں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قومی مرکز برائے موسمیات NCM نے اعلان کیا کہ اس سال حج کے دوران موسم شدید گرم رہے گا۔ اس دوران ٹیمپریچر 45 سے 48 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے اور بارش کے بھی بہت کم آثار بتائے گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے سختی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی حجاج سے اپیل کی۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم اور سینئر علماء کی کونسل کے چیئرمین شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں آنے والے عازمین حج کو نصیحت کی ہے کہ وہ حج کے دوران اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی قدر کریں۔ شیخ عبدالعزیز نے حج کے دوران سہولت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کی قیادت میں حکومت کی غیر معمولی خدمات اور سہولیات کی تعریف کی۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنے کا حکم دیا، خاص طور پر جب وہ لوگ جو جسمانی اور مالی طور پر استطاعت رکھتے ہیں۔ امت شاہ نے منگل کو مسلسل دوسری بار مرکزی وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ چارج سنبھالنے سے پہلے شاہ نے صبح 10:30 بجے چانکیا پوری میں نیشنل پولیس میموریل کا دورہ کیا اور شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے ساتھ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے اور مرکزی داخلہ سیکریٹری اجے کمار بھی شامل تھے۔ گجرات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی روایتی سیٹ گاندھی نگر سے جیت کر لوک سبھا پہنچنے والے امت شاہ کو مسلسل دوسری بار انتہائی اہم وزارت داخلہ کا درجہ دیا گیا۔ چارج سنبھالنے کے لیے نارتھ بلاک پہنچنے پر مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے اور بنڈی سنجے کمار نے گلدستہ دے کر ان کا استقبال کیا۔ اپنی پہلی میعاد میں شاہ نے جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ہٹانے، جموں کشمیر کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے، برطانوی دور میں نفاذ فوجداری انصاف کے نظام کو تبدیل کرنے اور شہریت ترمیمی قانون جیسے اہم فیصلے لیے تھے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ کاؤنسلنگ پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا۔ نیٹ امتحان 2024 کے نتائج کے بعد پیدا ہونے والے تنازع پر سپریم کورٹ نے منگل کو یہ فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد اب نیٹ کاؤنسلنگ مقررہ وقت پر ہی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے NTA کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دراصل اس عرضی میں 4 جون کو آنے والے نیٹ UG کے نتائج کی بنیاد پر کاؤنسلنگ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو تلنگانہ کے رہنے والے عبداللہ محمد فیض اور آندھرا پردیش کے رہنے والے ڈاکٹر شیخ روشن کی جانب سے امتحان سے متعلق دائر عرضی پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران فی الحال کاؤنسلنگ پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے NTA یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ امتحان کا تقدس متاثر ہونے پر جواب داخل کریں۔
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नामालूम अफराद ने गोली मारकर एक मस्जिद के इमाम का कत्ल कर दिया, जिनकी शिनाख्त मौलाना अकरम की हैसियत से हुई है। इनकी लाश मंगल की सुबह अपने घर के बाजू एक सुनसान मकाम पर बरामद हुई। मुकामी लोगों ने लाश को देखते हुए पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या पीर की सुबह मुरादाबाद के कटघर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले भैंसिया गांव में पेश आया। रामपुर के मासवासी के रहने वाले 36 साल मौलाना अकरम भैंसिया गांव की बड़ी मस्जिद में इमामत करते थे। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ भैंसिया में रहते थे। बताया जा रहा है कि बीवी 2-3 दिन के लिए बच्चों के साथ रिश्तेदार के घर गई हुई थी। मौलाना अकरम घर पर अकेले थे। पीर की रात किसी ने अकरम को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मंगल की सुबह इनकी नाच घर के करीब खंडर में पड़ी मिली। सुबह जब गांव वालों ने नाच देखी तो पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। हुकाम ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जाए वाक़या पर तफ्तीश की। एसपी सिटी का कहना है कि मामले की जांच जारी रहेगी। इस वाक़े के बाद गांव में मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ भैंसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के एक व्यक्ति, जो घर के ही बगल में एक खंडहरनुमा एक जो मकान बना है, वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी। पुलिस ने मौके पाकर देखा, उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज कराने भी नहीं गए थे, तो रात्रि में अपने घर से ही किसी के बुलाने पर संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई है। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं। जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया एक गोली है। आंध्र प्रदेश के नामजद चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने मंगल को ऐलान किया है कि अमरावती रियासत का दारुल हुकूमत होगा। कौमी जमहूरी इत्तेहाद के नौमुंतखबा अरकान असेंबली के इजलास को खिताब करते हुए जिन्होंने इन्हें लीडर मुंतखब किया, इन्होंने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के नाम पर रियासत के मुस्तकबिल के साथ कोई खेल नहीं खेलेगी और अमरावती की बहैसियत रियासती दारुल हुकूमत तरक्की को जारी रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि 10 साल बाद भी हम इस मौक़िफ़ में नहीं हैं कि ये कह सकें कि हमारी रियासती दारुल हुकूमत कौन सी है। इन्होंने अमरावती के बहैसियत रियासती दारुल हुकूमत तरक्की को रोक देने के लिए बेशुरू YSR कांग्रेस हुकूमतों पर तनकीद का निशाना बनाया। 2019 में जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने साबिक़ा तेलुगु देशम हुकूमत के फैसले के ख़िलाफ़ ऐलान किया था कि आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमतें तश्कील दी जाएंगी। चंद्राबाबू नायडू जो चारशंबा 12 जून को बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ लेने वाले हैं, कहा कि हमारा दारुल हुकूमत अमरावती है। इन्होंने यकीन दिलाया कि विशाखापट्टनम को माली दारुल हुकूमत के तौर पर तरक्की दी जाएगी और करनूल को हर शोबे में तरक्की दिलाई जाएगी। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि तमाम अहल ख़ानदान जल्द ही वाइट राशन कार्ड हासिल करेंगे। काबीना के इजलास के बाद ये राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे और कार्ड होल्डर्स को 3 माह के अंदर बारीक चावल फराहम किया जाएगा। काबीना ने आला मेयार का धान पैदा करने वाले किसानों को 500 रुपये फी कुंटल बोनस देने का भी फैसला किया। हुजूर नगर में अपने कैंप ऑफिस में मुनक़िदा एक जायज़ा मीटिंग के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने कोडाडा MLA पद्मावती के साथ महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग्स, महकमे पंचायत राज और महकमे बिजली के अहदेदारों के साथ तरक्याती कामों पर तबादिले ख्याल किया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि मिलावट और सारिफीन को गैर मयारी खाना फराहम करने वाले होटलों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में मंगल को होटल एसोसिएशन के एक इजलास को खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि सारिफीन को मयारी खाना फराहम किया जाना चाहिए और होटलों के अलावा रेस्टोरेंट्स को गैर मयारी खाने की सरबराही बंद कर देनी चाहिए। वजीर सेहत ने कहा कि हैदराबाद की बिरयानी आलमी तौर पर शहरियत रखती है। हैदराबाद को मेडिकल टूरिज़्म के मरकज़ में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और हैदराबाद शहर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी तरक्की दी जाएगी। इन्होंने होटल इंतज़ामिया से समाजी जिम्मेदारी के तहत
खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि हर 6 माह में एक मरतबा होटल इंतज़ामिया के लिए वर्कशॉप भी मुनक़िद किए जाएंगे ताकि होटलों में साफ़ सफाई और मेयारी ग़िज़ा की फ़राहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर होटल इंतज़ामिया की जानिब से पेश करदा मुख्तलिफ़ तजावीज़ात और मशवरों पर वज़ीर मौसूफ़ ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इस इजलास में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन, ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन, बार एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन, इंडियन डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स एसोसिएशन, तेलंगाना पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर एसोसिएशन, तेलंगाना बेकरी एंड आइसक्रीम एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को कहा कि रियासत के तमाम स्कूल्स 12 जून से गरमाई तातीलात के बाद दोबारा खोल दिए जाएंगे। खम्मम में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा ने कहा कि स्कूलों की तातीलात में तोसी का कोई मंसूबा नहीं है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला में मौसलाधार बारिश के बाइस ऐसी इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि स्कूल्स की तातीलात में तोसी की जा सकती है। ताहम आज सरकारी तौर पर वजाहत कर दी गई है कि स्कूल्स चारशंबे से दोबारा खुल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा ने खम्मम में मुकामी अहदेदारों के साथ एक इजलास भी तलब किया और कहा कि 2 ta 3 दिन में नए राशन कार्ड्स की तकसीम और नए वज़ाइफ की मंजूरी पर हुकूमत पॉलिसी फ़ैसला कर सकती है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 650 करोड़ रुपए के मुआर्रफ से अमा आदर्श स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि पेशरू BRS हुकूमत की शुरू करदा मिशन भगीरथ स्कीम का भी अहिया किया जाएगा। ताहम नक़ाइस की निशानदही और इनकी यकसोई के बाद ये स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। 2 साला B.Ed कोर्स में दाखिलों के लिए मुनक़िदा एडसेट 2024 के नताइज जारी कर दिए गए हैं। एडसेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन आर लंबादरी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वो वाइस चांसलर नवीन मित्तल ने मुश्तरका तौर पर TG कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन हॉल मासाब टैंक हैदराबाद में एडसेट के नताइज जारी कर दिए हैं। इन्होंने बताया कि 96.90% उम्मीदवारों ने एडसेट इम्तिहान पास किया। ये इम्तिहान 23 मई को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगोंडा के ज़ेर इंतज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मुनक़िद हुआ। 33,898 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए थे। इम्तिहानात 2 सेशन में मुनक़िद हुए। सेशन 1 में 16,929 के मुकाबले 14,633 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। सेशन 2 में 16,950 में से 14,830 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ हिस्सों में जुनूब मगरिबी मानसून के मज़ीद पेश कदमी के लिए हालात साजगार हैं। इसके ज़ेर असर तेलंगाना के आदिलाबाद, निर्मल, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश का इम्कान है। चारशंबे को रियासत के निज़ामाबाद, राजनासर सल्ला, करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्रादरी, कोथागोडम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और कामारेड्डी में भी यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया। नीट काउंसलिंग पर इम्तना आयद करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस।
امراوتی آندھرا پردیش کا دارالحکومت، چندرا بابو نائیڈو کا اعلان۔ ہیڈ سیٹ کے نتائج جاری، ضائع 96% امیدوار کامیاب۔ تلنگانہ میں مانسون کی پیش رفت، کئی مقامات پر بارش کا امکان۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ کل پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔